Good morning, students. Now, today's part of chemical bonding is molecular orbital theory, formation of different molecules on the basis of molecular orbital theory. कल हमने पहला एग्जाम्पल देखा था हाइड्रोजन का, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी. नाउ टुडेज पार्ट इज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ helium molecule on the basis of molecular orbital theory. First atom is हाइड्रोजन, सेकेंड इज हेलियम. पीरियोडिक टेबल में पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, वो हमने कल देखा है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, और बॉन्ड ऑर्डर थी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की 1H-H. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस सिंगल बॉन्ड. नाउ हियर formation of helium molecule on the basis of molecular orbital theory. First point is helium atom Z is equal to 2. Atomic number of helium is 2. Has electronic configuration is 1s2. Helium atom has electronic configuration 1s2 because of it containing 2 electron in its valence shell. The electronic configuration of helium is 1s2. Helium atom contains 2 electrons, hence He2 molecule contains 4 electrons. One helium atom containing 2 electrons. So therefore 2 helium atom containing how many electrons? 4 electrons. Linear combination of 2 1s orbitals. So अभी helium molecule कैसे बनेगा? 1s orbital of one helium atom overlaps with 1s orbital of another helium atom. So ये overlapping कैसी होती है? Linear overlapping. The linear overlapping, linear combination of 2 1s orbitals, linear combination of 2 1s orbitals gives rise to 2 molecular orbitals, that is sigma 1s and sigma star 1s. देखो ना, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हीलियम एटम कंबाइन होने के बाद क्या बन जाएगा? 2 हीलियम एटम्स बन जाएंगे. 2 हीलियम एटम एक दूसरे के साथ मिल जाने के बाद मॉलिक्यूल बन जाएगा. तो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन 1s सिग्मा 1s में जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 1s में जाएंगे. मीन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल occupies 2 electrons and anti-bonding molecular orbital occupies 2 electrons. So total electrons are 4. और ये इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन होने के बाद. कौन से ऑर्बिटल में लीनियर, एटॉमिक ऑर्बिटल में लीनियर कॉम्बिनेशन होता है? 1s ऑर्बिटल ऑफ वन हीलियम एटम एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ अनदर हीलियम एटम. So therefore linear combination of 2 1s atomic orbital gives rise to 2 molecular orbitals, that is sigma 1s and sigma star 1s. The electronic configuration of helium molecule is, अभी 2 हीलियम एटम कंबाइन होने के बाद हीलियम मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी? sigma 1s2 and sigma star 1s2. This is the electronic configuration of helium molecule. The electronic configuration of helium molecule is sigma 1s2 sigma star 1s2. ब्रैकेट के ऊपर 2 दिखाना है, sigma 1s ब्रैकेट में लिखना है और ब्रैकेट के ऊपर 2 लिखना है. So the electronic configuration of helium molecule is sigma 1s2 and sigma star 1s2. एक मॉलिक्यूल अगर आपको यहाँ पर समझ में आ गया ना, तो बाकी के आगे जो 5 मॉलिक्यूल हैं वो आपको इजीली समझ में आएंगे. ओके, सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल इज सिग्मा 1s2 sigma 2 sigma star 1s2. Okay, so this is the electronic configuration. And bond order of helium molecule is, helium molecule की bond order कैसे निकालेंगे? What is the formula to determine bond order? Number of electrons present in bonding molecular orbital minus number of electrons present in anti-bonding molecular orbital divided by 2. So how many electrons present in bonding molecular orbital? यहाँ पर डायग्राम दिखाई है. लेफ्ट हैंड साइड में हेलियम एटॉमिक ऑर्बिटल, नीचे दिया है नाम लिखा है He एटॉमिक ऑर्बिटल. राइट हैंड साइड में He एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है. 2 इलेक्ट्रॉन मिक्स होने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन किस में चले गए? सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए. विच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज एट हायर एनर्जी लेवल? किसकी एनर्जी ज़्यादा है? सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल इज एट हायर एनर्जी लेवल एंड सिग्मा 1s ऑर्बिटल इज एट लोअर एनर्जी लेवल. क्योंकि एनर्जी लेवल दिखाई देखो है ना, यहाँ पर एनर्जी लेवल या एरो दिखाई देखो एनर्जी का, तो बीच में एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है. किससे? एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है और एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कम होती है. द एनर्जी ऑफ bonding molecular orbital is lower than atomic orbital
एंड द एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज हायर दैन एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, इसलिए डायग्राम है। तो दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गए, दो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में गए और He2 मॉलिक्यूल बन गया। सो देयरफॉर द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल इज Nb माइनस Na डिवाइडेड बाई 2। Nb मीन्स बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कितने हैं 2 और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2, 2 माइनस 2 0, 0 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0। सो हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट प्रोड्यूसेस एनी बॉन्ड, इसलिए हीलियम ये मोनो एटॉमिक गैस होता है, मोनो एटॉमिक इनर्ट गैस होता है, वो किसी के साथ भी कंबाइन नहीं होता। इनर्ट गैसेस आर इन नॉट रिएक्टिव, दे डू नॉट प्रोड्यूसेस any covalent bond, they do not forms any bond with any element. Okay, so that's why the bond order of helium molecule is 0. Okay, since the bond order is 0, He molecule is not stable, इसलिए He molecule stable नहीं होता, He molecule नहीं बनता, वो stable नहीं होता। Okay, now third example, कल हमने first example हाइड्रोजन molecule देखा, हाइड्रोजन molecule एक bond बनाता है, bond order 1 है, helium molecule की bond order 0 है। now third example, for the formation of lithium molecule on the basis of molecular orbital, explain the formation of lithium 2 molecule on the basis of MOT molecular orbital theory। now lithium एटॉमिक नंबर क्या है लिथियम का, थर्ड एलिमेंट है, इसलिए एटॉमिक नंबर 3 है। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, लिथियम एटम Z इज इक्वल टू 3 हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज 1s2 2s1, 2 इलेक्ट्रॉन 1s में चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर्स इनटू 1s ऑर्बिटल एंड 1 इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 2s ऑर्बिटल। सो दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम इज 1s2 2s1, this is the electronic configuration of lithium। okay, lithium atom has 3 इलेक्ट्रॉन, एक लिथियम में तीन इलेक्ट्रॉन है, तो 2 लिथियम कंबाइन होने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 प्लस 3 दैट इज 6। एक लिथियम एटम में 3 इलेक्ट्रॉन है, बराबर है 1 lithium atom containing 3 electrons, so therefore by combining 2 lithium atom how many electrons are formed, it produces 6 electrons। okay, so therefore lithium atom has 3 electrons, hence lithium Li2 molecule has 6 electrons। linear combination of 4 atomic orbitals, which 4 atomic orbital, 1s2 2s1, एक लिथियम में 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s और 2s, तो 2 लिथियम में 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाएंगे। द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिव्स राइज टू 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, नेमली कौन से 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। कल हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर देखी थी, है ना, except oxygen and fluorine the increasing order of molecular orbitals are, वो फॉर्मूला इंक्रीजिंग ऑर्डर दोनों को भी ध्यान में रखो, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की दोनों की अलग है और बाकी के एलिमेंट की अलग है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, इसलिए वो इंक्रीजिंग ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो linear combination of 4 atomic orbitals gives rise to 4 molecular orbitals, namely sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s। The electronic configuration, then the electronic configuration of lithium Li2 molecule becomes, तो Li2 molecule की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायग्राम है, डायग्राम में सिर्फ समझ में आएगा आपको, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2s1 में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन होने के बाद दो इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, सिग्मा 2s में। सो देयरफॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Li2 मॉलिक्यूल इज सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 एंड सिग्मा 2s2। सिग्मा स्टार 2s2 में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आएगा। So therefore the electronic configuration of Li2 molecule is sigma 1s2, sigma star 1s2 and sigma 2s2। okay, now since no unpaired electron is present in lithium molecule, देखो कल भी बताया था, the molecule containing unpaired electron in molecular orbitals are paramagnetic। जिस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक, और जिस द मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेनिंग अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, बीच के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये नहीं एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s एंड सिग्मा 2s, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो यहाँ कहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, नहीं, सिंस
नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन लिथियम मॉलिक्यूल, इट इज डायमैग्नेटिक। ओके, एंड बॉन्ड ऑर्डर देखो, बॉन्ड ऑर्डर इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला Nb माइनस Na डिवाइडेड बाय 2। ओके, Nb मीन्स बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में देखो सिग्मा 1s में 2 है और सिग्मा 2s में 2 है, 2 + 2 4, 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s, स्टार से जो इंडिकेट किए उसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, सो 4 - 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1। सो लिथियम मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, लिथियम मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड बनाता है, सो देयरफॉर दस अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू लिथियम एटम्स, हेंस लिथियम इज स्टेबल मॉलिक्यूल। हेलियम स्टेबल नहीं है क्योंकि वो बॉन्ड ही नहीं बनाता, हाइड्रोजन स्टेबल है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, लिथियम सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसलिए लिथियम मॉलिक्यूल इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल। ओके, दिस इज थर्ड एग्जांपल। फोर्थ वन, अभी हाईएस्ट बहुत ही बड़ा एग्जांपल आया है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ी है इसलिए ऑर्डर देखो, ऑर्डर हमें ध्यान में रखनी है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, अपने आप आपको बाय हार्ट हो जाएगा, ये 5-6 एग्जाम्पल होने के बाद आपको एनर्जी लेवल, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल अपने आप बाय हार्ट हो जाएगी। So explain the formation of nitrogen molecule on the basis of molecular orbital theory। molecular orbital theory से हमें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है वो देखना है, इसलिए आपको क्या ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ध्यान में रखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी की आपको ध्यान में नहीं रहेगी तो आपको ये मॉलिक्यूल लिखने नहीं आएगा, इसलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, Z इज इक्वल टू 7 मीन्स नाइट्रोजन कंटेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट टोटल इलेक्ट्रॉन 7। सो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, Z इज इक्वल टू 7 हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोलो। 1s2 बराबर है 2s2 बराबर है और 2p में कितने हैं 3 बराबर है, किसी को बताना नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 2p3, नाइट्रोजन कंटेनिंग 1 लोन पेयर एंड 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, बराबर है ना। नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, बताओ कितने बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस डैश डैश बॉन्ड, कार्बन प्रोड्यूसेस डैश डैश बॉन्ड एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस डैश डैश बॉन्ड। ऑक्सीजन कंटेनिंग हाउ मेनी लोन पेयर्स, ऑक्सीजन एटम कंटेनिंग हाउ मेनी लोन पेयर्स, oxygen atom containing 2 lone pairs and 2 unpaired electrons, so that's why oxygen produces 2 covalent bonds, nitrogen containing 1 lone pair and 3 unpaired electrons, that's why nitrogen produces 3 single covalent bond, single or triple covalent bond, okay, and carbon containing 4 unpaired electron and no lone pair, so that's why carbon is tetravalent, it produces 4 covalent bond, okay. So electronic configuration of nitrogen is 1s2 2s2 2p3, nitrogen atom containing 7 electrons, therefore nitrogen molecule containing how many electrons, दो नाइट्रोजन कंबाइन होने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे मॉलिक्यूल में, नाइट्रोजन एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, बराबर है ना, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बताओ, 7 + 7 14 है ना। सो नाइट्रोजन एटम कंटेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स, हेंस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन्स 14 इलेक्ट्रॉन्स। अभी ये ऑर्बिटल्स कितने ऑर्बिटल्स है, 1s 2s एंड 2p, 3 ऑर्बिटल्स है एटॉमिक ऑर्बिटल। द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाउ मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, टोटली एग्जैक्टली कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 1s का 1 है, 2s का 1 है, 2p के 3 है, px py pz है ना। So total atomic orbitals, how many total atomic orbitals are there? 5. The linear combination of 5 atomic orbitals gives rise to 10 molecular orbitals. कितने molecular orbital बन जाएंगे, 10. Linear combination of atomic orbitals gives rise to different molecular orbitals. अलग अलग molecular orbital बन जाएंगे। फिर से देखो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डैश डैश एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिव्स राइज टू डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बिकम्स, क्या हो जाएगी बताओ, यहाँ पर ये डायग्राम है ना, वो डायग्राम आपको ध्यान में आएगी तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आएगी। वो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz2, दिस इज द यहाँ मैंने डायग्राम की यहाँ पर देख के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई है, यह मैंने देखा नहीं है, पॉइंट नंबर 4 नहीं देखा है मैंने,
यहाँ डायग्राम में देखा है मैंने, देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंक्रीजिंग एनर्जी, एनर्जी इंक्रीज हो रही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। लोअर एनर्जी कौन है, सिग्मा 1s, उससे हायर एनर्जी सिग्मा स्टार 1s, उससे हायर एनर्जी किसकी है, सिग्मा 2s, उससे ज़्यादा हायर एनर्जी किसकी है, सिग्मा स्टार 2s, उससे ज़्यादा हायर एनर्जी कौन है, पाई टू पी जेड इज इक्वल टू पाई टू पी वाई, सॉरी गलत बोला मैंने, पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई की एनर्जी इक्वल होती है, इसलिए पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई, और उससे हायर एनर्जी कौन है, सिग्मा टू पी जेड। ओके, उसके हायर, उसमें इलेक्ट्रॉन ही है, हायर एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है, ये इतने ध्यान में रखेंगे तो भी बस है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 pi to p x2 pi to p y2 and sigma to p z2. Okay, this is the electronic configuration of nitrogen molecule. Since nitrogen molecule does not have unpaired electron, unpaired electron कहाँ दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं ना। Since nitrogen molecule does not have unpaired electron, it is diamagnetic. वो कैसा है, डायमैग्नेटिक है। ओके, बॉन्ड ऑर्डर क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर देखो ना, आपको समझ में आ रहा है इलेक्ट्रॉन कैसे एंट्री हो रहे हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन है ना 1s के, वो ऊपर सिग्मा 1s में गए, ये दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s में, यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन नीचे, ये दो लेफ्ट में दो इलेक्ट्रॉन है 2s में, देखो 2s का लेफ्ट के दो इलेक्ट्रॉन, 2s के राइट के दो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्डिंग में चला गया, एक एंटी बॉन्डिंग में। यहाँ पर भी 1s के देखो, लेफ्ट में 1s में दो इलेक्ट्रॉन है, राइट में 1s में दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में गए, दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 1s में गए। अभी पी ऑर्बिटल देखो, यहाँ पर पी ऑर्बिटल में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है लेफ्ट में, राइट में भी पी, यहाँ पर पी लिखना, 2p लिखना भूल गया, व्हाइट ना लगाए, देखो यहाँ पर 2p लिखना है। सो 2p लेफ्ट में है, राइट में भी 2p है। लेफ्ट में जो नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, राइट में जो नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल है उसमें भी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो पहला अनपेड इलेक्ट्रॉन 2px का, दूसरा अनपेड इलेक्ट्रॉन 2px का, देखो पहला ये लेफ्ट में 2px है ना, और राइट में 2px है, वो मिक्स हो जाते हैं, किस में आ गए वो दो इलेक्ट्रॉन, सिग्मा सॉरी पाई 2px में चले आ गए। कौन से दो इलेक्ट्रॉन पाई 2px में आ गए, ये लेफ्ट में जो p है ना px वो इलेक्ट्रॉन, और राइट में px का इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। लेफ्ट में जो py का इलेक्ट्रॉन है, राइट में जो py का इलेक्ट्रॉन है, दोनों मिक्स हो जाएंगे, कहाँ आ गए, पाई 2py में आ गए। अभी सिग्मा 2pz कहाँ कैसे बन जाएगा, लेफ्ट में जो 2pz ऑर्बिटल है, 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल है लेफ्ट में, और राइट में भी 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2pz में आ गए, और दो इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, क्योंकि 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन के 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन के 6 इलेक्ट्रॉन बन गए। ओके, सो दिस इज no unpaired electron present in nitrogen molecule, so that's why nitrogen molecule is dimagnetic. Okay, and bond order क्या है कि बताओ, bonding number of bonding electron and minus number of anti bonding electron divided by 2। bonding electron कितने गिनो, 2 और 2 4, 4 और 6 10, बराबर है ना। सिग्मा 1s में 2 है, सिग्मा 2s में 2 है, और सिग्मा पाई 2px पाई 2py एंड सिग्मा 2pz ये 6 है, टोटल 6 प्लस 4 दैट इज 10। और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने देखो, सिग्मा स्टार 1s and sigma star 2s, 2 plus 2 4 10 minus 4 that is 6 divided by 2 that is 3। so nitrogen produces having how many bonds, 3 bonds, because of nitrogen containing 3 unpaired electrons, बराबर है ना। नाइट्रोजन में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ओके, सो नाइट्रोजन, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज 3, thus there are 3 bonds in nitrogen molecule। okay, so this is next molecule, nitrogen molecule। now the next molecule is explain the formation of oxygen molecule on the basis of molecular orbital theory। explain the formation of O2 oxygen molecule on the basis of molecular orbital theory। अभी इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर अलग है, वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, नाउ ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। ऑक्सीजन कंटेनिंग टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 4, 8 हो गए। एंड वैलेंस शेल कंटेनिंग, द वैलेंस शेल ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 are lone pair and 2 are unpaired, so that's why oxygen produces how many bonds, 2। so bond order of oxygen is 2 whether it is single or double bond।
या तो फिर वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा या फिर डबल बॉन्ड बनाएगा. ओके, सो ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 p4. ऑक्सीजन एटम कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, सो देयरफॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंटेनिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 8 plus 8, 16 electrons. Oxygen atom contains 8 electrons, hence oxygen molecule contains 16 electrons. Linear combination of which atomic orbitals undergoes linear combination? Which atomic orbitals undergoes linear combination? 1s, 2s, 2px, 2py and 2pz. 5 एटॉमिक ऑर्बिटल में लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएंगे और 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे. बराबर है. द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 5 atomic orbitals gives rise to 10 different molecular orbitals. है ना, यहाँ पर दिया नहीं है टेक्स्ट बुक में, लेकिन 5 एटॉमिक ऑर्बिटल में लीनियर कॉम्बिनेशन होगा. लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिव्स राइज टू डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. देयरफॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल बिकम्स, क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन O2 मॉलिक्यूल की? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई स्टार 2px1 एंड पाई स्टार 2py1. दिस गिव्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. देखो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है. किस में अनपेड इलेक्ट्रॉन है? पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में है. पाई स्टार 2px में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है. पाई स्टार 2py में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है. इसलिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसा है? पैरामैग्नेटिक, बिकॉज ऑफ इट कंटेनिंग 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन. जिस मॉलिक्यूल में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो डायमैग्नेटिक होता है, और जिस मॉलिक्यूल में अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होता है. Magnetic property, the molecule containing unpaired electron, they are strongly attracted towards electric field and magnetic field. जिस मॉलिक्यूल में अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं. और जिस मॉलिक्यूल में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं. दे डू नॉट अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो दैट्स व्हाई एल्निको एलॉय, एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, आयरन, they are used for the manufacture of magnet because they produces permanent magnetic property. जिस मॉलिक्यूल में लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, बिकॉज ऑफ दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. इसलिए मैग्नेट, लोह चुंबक, मैग्नेट बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? एल निको, ये एलॉय है. एल एल्यूमिनियम, नी निकेल, कोबाल्ट एंड आयरन, इन चारों मेटल को कंबाइन करने के बाद मैग्नेट बनता है. ओके, तो यहाँ पर ऑक्सीजन में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है. कैसे बन गए? इलेक्ट्रॉनिक लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल का और डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या मिली? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2px2 सिग्मा नहीं, पाई 2px. फिर से देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जरा जमलिंग मत करो, मुझसे जमलिंग हो रही है, लेकिन आप देखो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1. This is the electronic configuration of oxygen molecule. Since oxygen molecule contains 2 unpaired electrons, it is paramagnetic. इसलिए oxygen molecule क्या है? Paramagnetic. And the bond order of oxygen molecule is Nb minus Na divided by 2, that is 10. bonding electron कितने हैं? 10 है. देखो सिग्मा 1s में 2, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा 2pz में 2, सिग्मा पाई 2px में 2 और पाई 2py में 2. सो 6 + 4 दैट इज 10. और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सिग्मा स्टार 1s में, सिग्मा स्टार 2s में और पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में. टोटल कितने हो गए? 6. ओके, 2 + 2 + 2 दैट इज 6. सो 10 - 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 2. सो इट इज इक्वल टू 2. सो oxygen produces how many bonds? 2 bonds. Thus there are 2 bonds in O2 molecule, whether it is single bond or O double bond O. ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है. ऑक्सीजन के बीच में 2 डबल बॉन्ड है, लेकिन वाटर में देखो H2O H-O-H, ऑक्सीजन 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है. सो ऑक्सीजन एटम इन any molecule it produces single or double bond, two bonds. Okay, whether it is double or single bond.
This is the example number 5 and example number 6 is a fluorine molecule. Example number 6 क्या है? Fluorine molecule. Explain the formation of F2 molecule on the basis of molecular orbital theory. Explain the formation of fluorine molecule F2 molecule on the basis of molecular orbital theory. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. देखो हेलो, सभी 5 मॉलिक्यूल हो गए इजीली. अभी वही पॉइंट लिखने हैं. पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. फ्लोरीन आइटम Z इज इक्वल टू 9 हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5. सो फ्लोरीन कंटेनिंग टोटल 9 इलेक्ट्रॉन एंड इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इट कंटेनिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 7. 3 आर लोन पेड एंड 1 इज अनपेड. एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है. Fluorine containing only one unpaired electron, so that's why fluorine produces single bond, only one bond. Okay, तो bond order fluorine की 1 आनी चाहिए. देखते आते हैं क्या. So 1s2 2s2 2p5. Fluorine atom contains 9 electron. Hence fluorine molecule containing 9 to the 18 electrons. फ्लोरीन एटम में 9 इलेक्ट्रॉन है तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. ओके, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिव्स राइज टू 10 molecular orbitals. Linear combination of 5 atomic orbitals gives rise to 10 molecular orbital. तो 10 में से एक में इलेक्ट्रॉन ही है, बाकी 9 में इलेक्ट्रॉन है. देखो यहाँ पर डायग्राम में दिया है. सो द इलेक्ट्रॉनिक ऑन दैट्स वाई द आफ्टर द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल the electronic configuration of molecular orbital, that is fluorine molecule, becomes sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, then sigma to p z2, pi to p x2, pi to p y2, sigma star to p x2, sorry sigma नहीं, pi star to p x2 and pi star to p y2. फिर से देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा टू पी z2, पाई टू पी x2, पाई टू पी y2, पाई स्टार टू पी x2, पाई स्टार टू पी y2. This is the electronic configuration of fluorine molecule. Since no unpaired electrons present in fluorine molecule, so that's why fluorine is diamagnetic. फ्लोरीन क्या है? डायमैग्नेटिक है, क्योंकि एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी पेड इलेक्ट्रॉन है. ओके, एंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू Nb माइनस Na डिवाइड बाय 2. 10 माइनस 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सो दैट इज 10 एंड एंटी बॉन्डिंग में 8. देखो आप गिनो और देखो इलेक्ट्रॉन. सो 10 माइनस 8 डिवाइड बाई 2, 10 माइनस 8 दैट इज 2, 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1. बराबर है ना. फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड. दस देर इज 1 बॉन्ड इन F2 मॉलिक्यूल. ओके, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ये 5-6 मॉलिक्यूल है, इसमें से एक एग्जाम्पल, कौन सा भी एग्जाम्पल आएगा, कौन सा भी आपको एग्जाम्पल, वेदर इट इज फ्लोरीन, वो फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन, लिथियम, बेरिलियम भी हो सकता है. बेरिलियम का एग्जाम्पल नहीं है इसमें. लिथियम है, हेलियम है, हाइड्रोजन है. ओके, कौन सा भी एग्जाम्पल आपको पूछा जा सकता है. बेरिलियम आप खुद बना सकते हैं. बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2. लिथियम जैसे ही होगी, सिर्फ लिथियम में सिग्मा स्टार 2s में इलेक्ट्रॉन नहीं थे और सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे. ओके, सो दिस इज टुडेज पार्ट. थैंक यू. और ये जो पढ़ाया मैंने 5 मॉलिक्यूल, बच्चे, बहुत से बच्चे पूछते हैं आज का होमवर्क क्या है, आज का होमवर्क क्या है. मैं 10-10 बार बता रहा हूँ, होमवर्क जो पढ़ा रहा हूँ वो होमवर्क है. और होमवर्क मुझे आज मैंने वीडियो सेंड किए तो मुझे शाम तक या फिर अगले दिन सुबह तक होमवर्क आने चाहिए. होमवर्क भेजते नहीं, 2-2 3-3 दिन के बाद होमवर्क भेजते हैं. ये अच्छी बात नहीं है. और होमवर्क भेजने के बाद मुझे इतने बच्चों का होमवर्क चेक करना पड़ता है, तो डेट मैं कैसे ध्यान में रखूँ. तो आपको मैंने बहुत बार बताया, डेट 50% स्टूडेंट्स डेट भेज रहे हैं. नोटबुक के ऊपर डेट नहीं लिखना है. होमवर्क भेजने के बाद नीचे स्पेसिफिक डेट टाइप करके भेजो, कौन से डेट का होमवर्क है वो. ओके, तो ये आपको रिक्वेस्ट है, होमवर्क प्रॉपरली टाइम टू टाइम भेजते रहो. 2-3 दिन के बाद होमवर्क जो भेजेगा उसकी मैं प्रेजेंट ही नहीं लगाऊंगा, क्योंकि कौन से दिन के होमवर्क है इतने ध्यान में रखना. 12th का भी मुझे सब होमवर्क देखना पड़ता है, आपका भी देखना पड़ता है. तो प्रॉपरली जिस दिन भेजा है उसी दिन भेजा करो. हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कंसिडर कर सकते हैं ना, कोई बीमार है या फिर. लेकिन लड़कियों का रिस्पॉन्स अच्छा है, लड़कियां होमवर्क प्रॉपरली भेजते हैं.
लड़कों में 50% स्टूडेंट 50-60% स्टूडेंट्स होमवर्क नहीं भेजते. और हँडरायटिंग प्रॉपरली निकालो. मी सगळ्या विद्यार्थ्यांना सांगतो, हँडरायटिंग व्यवस्थित काढा नोटबुकमध्ये आणि फोटो व्यवस्थित काढून पाठवा. मला दिसत नाही ते काय लिहिलेलं आहे ते. काळे काळे फोटो येतात काय, एकदम भुरकट फोटो येतात काय, मी काय काय चेक करत बसू. 76 मुलं 76 स्टूडेंट्स है टोटल 11th में. सभी बच्चों का मुझे होमवर्क चेक करना पड़ता है. तो इसीलिए होमवर्क प्रॉपरली टाइम टू टाइम भेजो. 2-3 दिन के बाद नहीं. आज वीडियो सेंड किया है तो आज के दिन होमवर्क बना के आप अगले दिन सुबह तो भेज सकते हैं ना. सभी की प्रेजेंट देख के मुझे प्रेजेंट ही लिखनी पड़ती है. और जो प्रेजेंट नहीं है, मुझे 2-3 दिन के बाद जो होमवर्क भेजेगा उसकी प्रेजेंट ही मैं सीधे एब्सेंट लिखा दूंगा. बाद में बोलना नहीं है होमवर्क मैंने भेजा था ही नहीं. मैं एब्सेंट सीधे होमवर्क प्रेजेंट ही अटेंडेंस एब्सेंट दिखा दूंगा. ओके. सो थैंक यू. दिस इज टुडेज पार्ट. थैंक्स वंस अगेन.